Namaskar to all of you. I am Dr. Pallavi Jain from School of Computing Science and Engineering of Belgodia's University. In computer graphics, we will study in this lecture we will study DDA algorithm. DDA stands for Digital Differential Analyzer Line Drawing Algorithm. The prerequisite for this lecture is we assume that you are already aware of the basic concepts of C programming language and basic mathematics because this DDA algorithm we will uh, implement through the C programming. We will implement the program. We will first study the algorithm, basic concepts we will include in this algorithm, basic mathematical concept of line drawing, basic equation of line and all, and then we will implement it through the C programming or C++ programming language. This tutorial has been prepared for students who don't know how graphics are used in computers. Basically, the implementation of implementation of graphics in our computers to visualize things like line drawing, circle drawing, like that. Now, what is DDA? Digital Differential Analyzer. It is an algorithm used for linear interpolation of variables over an interval between given start and end points for the rasterization of lines, triangles, and polygons. Rasterization means the scan conversion. Basically, we will show the objects on our screen. So for to display the objects on our screen and for rasterization, we need some algorithms. So first of all, in this lecture, we will study DDA algorithm. So in this lecture, we will write a C program to draw a line segment between two given points. So the aim of our DDA algorithm to draw a line segment between two endpoints, that is the first endpoint is A, suppose x1 on x1 by 1 coordinate, and second endpoint is B, that is x2 y2 coordinate. Now this algorithm is an incremental scan conversion method. Here we perform calculations at each step using the results from the preceding step. जो हम कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करेंगे वही कैलकुलेशन हमारी नेक्स्ट स्टेप में काम आएगी. So the characteristics of the DD algorithm is to take unit steps along one coordinate and compute the corresponding values along the other coordinates. पहले हम फर्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा जैसे x1 एंड x1 y1, उसी को लेकर हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम अदर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालेंगे. द यूनिट स्टेप्स आर ऑलवेज along the coordinate of greatest change, that is if dx is delta x and dy is delta y, then we would take unit steps along x and compute the steps along y axis. So now I am going to explain the algorithm. This algorithm, first of all start, then second declare variables x y, x1 y1, x2 y2, these are the endpoints, and xy is the axis. K k is the decision parameter, dx is delta x and dy is delta y, s for steps, and xi and yi for different coordinates. And also declare G driver, which we have studied in our experiment number 1. G driver means graphics driver is equals to detect and graphic mode. So we will declare all these variables in our C program. Now initialize the graphic mode with the path location in Turbo C3 folder, which we have studied in last lecture. Input the two line endpoints and store the left endpoints in x1 y1. तो जो हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज हमारे हैं 3,3 जो हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और y1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 3. लोड दिस इनटू
फ्रेम बफर दैट इज प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हम अपना इन कोऑर्डिनेट से प्लॉट कर देंगे और x इक्वल टू x1 हो जाएगा और y इक्वल टू भी y1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या कैलकुलेट, डेल्टा x और dx, जिसमें अब जो हमारे दो एंड पॉइंट्स गिवन है तो x2 माइनस x1 हमारा डेल्टा x आ जाएगा और dy या डेल्टा y आ जाएगा y2 माइनस y1। अगर हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx dy से ज़्यादा है तो s जो वेरिएबल है, s मतलब लेंथ, तो उसमें हमारी dx की वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज s इज इक्वल टू हमारी dy की वैल्यू आएगी। ये s जो लेंथ वाली कैलकुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हम डेल्टा x और डेल्टा y निकालेंगे। अगर आपका डेल्टा x ज़्यादा है डेल्टा y से तो s में या लेंथ नाम के वेरिएबल में आप क्या इनिशियलाइज कर दो, dx, अदरवाइज dy। देन xi इज इक्वल टू dx अपॉन x, xi इज इक्वल टू dx अपॉन s यानी डेल्टा s अपॉन लेंथ, और yi इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन लेंथ। स्टार्ट फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूइंग टिल k लेस देन s, यानी वहां तक हमारा लूप चलेगा। द पॉइंट्स विल बी x इज इक्वल टू x प्लस i, y इज इक्वल टू y प्लस i, एंड प्लॉट पिक्सल्स यूजिंग पुट पिक्सल्स एट पॉइंट x और y। जो हमने पुट पिक्सल नाम का एक फंक्शन पढ़ा था, अब जो हमारे पास प्लॉटिंग वैल्यूज आती जाएंगी उनको हम पुट पिक्सल से वहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे। नाउ क्लोज ग्राफ एंड स्टॉप द algorithm and then program. So that was about digital differential analyzer algorithm. Now we will study step by step and how to implement it. So the line of equation we use here in the line of equation is y is equals to mx plus b. Okay, mx plus b, as you all know about that. So for the next value yi plus 1 is equals to m x I plus 1 plus b, and m आपकी जानकारी के लिए बता दूं, here m is the slope of the line where m की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो हम ये जो स्लोप की वैल्यू है वो हम लेंगे अगर हमारी m लेस देन 1 है, स्लोप अगर हमारा लेस देन 1 है, 1 अगर वैल्यू, जैसे हमारी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, सपोज अगर हमारे डेल्टा y आया 10 और डेल्टा x आया 5, तो 10 अपॉन 5 हमारा आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 मीन्स हाफ। तो हमारा क्या हो गया, स्लोप की वैल्यू यानी m की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। तो अगर हमारा ये सेटिस्फाई होता है देन x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। सेट डेल्टा x इज इक्वल टू 1 एंड y की जो नेक्स्ट वैल्यू है y1 प्लस m यानी स्लोप की वैल्यू, एंड x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हम इंक्रीमेंट करेंगे। केस 2 क्या करेंगे, अगर हमारी जो स्लोप की वैल्यू है वो लेस देन 1 है यानी नेगेटिव में आई है, तो x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1। अब जो हमने डेल्टा x की वैल्यू 1 सेट करी थी, इस केस में हम डेल्टा y की वैल्यू को 1 सेट कर देंगे और x इंक्रीमेंट करेंगे 1 अपॉन m, और y में इंक्रीमेंट हो जाएगा अंटिल y y2 की वैल्यू नहीं हो जाता। तो दैट वाज ऑल अबाउट द DDA एल्गोरिथम। The advantages of this algorithm is it is faster method than using direct use of line equation. This method does not use multiplication theorem. It allows us to detect the change in the value of x and y. So plotting of same point twice is not possible. x और y की वैल्यू चेंज होगी तो सेम पॉइंट दोबारा नहीं आएगा। This method gives overflow indication when a point is repositioned. It is an easy method because each step involves just 2 additions. There are advantages but also there are some disadvantages. It involves floating point additions. Floating point addition means fractional additions. Rounding off is done. Accumulations of rounding off error cause accumulation of error. Rounding off operations and floating point operations consumes a lot of time. It is more stable for generating line using the software but is less suited for hardware implementation. So these were all about the advantages and disadvantages of DDA algorithm. अब ये वही एल्गोरिथम है जो हमने लास्ट अभी पढ़ा जस्ट नाउ, ये थोड़ा सा उसका डिफरेंट फॉर्म है।
ये केसेस हैं वही कि इफ m लेस देन 1, case 2 m is equals to 1 and case 3 m greater than 1. These are the values of slopes. ओके, तो अगर हमारी लेस देन 1 है स्लोप की वैल्यू, तो एक्स पी प्लस 1 यानी नेक्स्ट वैल्यू राउंड ऑफ करके 1 प्लस एक्स पी होगा, और y की नेक्स्ट वैल्यू राउंड ऑफ करके हमारा स्लोप प्लस वाई पी होगा, y की जो प्रीवियस वैल्यू होगी। और अगर हमारी m इज इक्वल्स टू 1 है बिल्कुल, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स पी और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई पी। और अगर के हमारा केस 3 होगा, हमारा इंटरसेप्ट वो जो स्लोप की वैल्यू है m वो ग्रेटर देन 1 है, तो x p नेक्स्ट वैल्यू ऑफ p 1 अपॉन m प्लस x, और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई पी, नेक्स्ट लास्ट वैल्यू। So if we take an example, if a line is drawn from 2, 3 to 6, 15, here x1 is 2, y1 is 3 and x2 is 6 and y2 is 15. So here डेल्टा x क्या होगा हमारा 6 माइनस 2 4, और डेल्टा y क्या होगा dy 15 माइनस 3 12. तो m क्या है हमारा इंटरसेप्ट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो 3. So this is greater than 1. So for calculating next value of x takes x is equals to x plus 1 upon m. तो इस तरह से हम इसको प्लॉट करेंगे। जो हमारी पहली वैल्यू थी ये तो 2,3 थी, है ना, और नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, टेक्स x is equals to x plus 1 upon m. तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके इसको पॉइंट्स को नेक्स्ट प्लॉट करते रहेंगे, और ये हमारे फिगर में हम प्लॉट कर देंगे इस तरह से। अगर हम 5,6 लेते हैं तो हमारा ये इस तरह से आता है राउंड ऑफ करके 6,7, और ये सब इस तरह से हम प्लॉट करेंगे टेबल में। ये इसकी फिगर है, स्टार्टिंग पॉइंट है 5,6 एंड एंडिंग पॉइंट है 8,12। तो ये 5,6 हमारी पहले कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6, और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करके डेल्टा वाई डेल्टा एक्स और एम निकाल के इस तरह से हम प्लॉट करते जाएंगे। DDA का ये एग्जाम्पल, और ये है इसका प्रोग्राम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हमें लैब में करना है, ठीक है। तो हम ये शुरू में ये पूरा graphics.h math.h ये सब करेंगे, ये इंट GD इक्वल्स टू डिटेक्ट GM ये सब हम इनिशियलाइज करेंगे जो हमने पढ़ा। ये इनिशियलाइज करेंगे x1 x2 y1 ये स्टेप्स के, और ये इंक्रीमेंट के लिए फ्लोट x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट ये सब। फिर हम एंटर करवाएंगे वैल्यू फर्स्ट एंड पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट, ये x1 y1 और x2 y2। फिर हम dx और dy निकाल लेंगे उसके बेसिस पे। फिर वही पूरा एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, लेंथ वाला। फिर k इक्वल्स टू 1 से लेस देन इक्वल टू स्टेप्स तक हम लूप चलाएंगे। ये स्टेप्स वही है जो s था उसमें जो हमने पढ़ा। और ये डिले क्या है, फॉर सीइंग द लाइन ड्राइंग प्रोसेस स्लोली। डिले अगर हमने 100 डाला तो वो धीरे धीरे लाइन ड्रॉ होकर आएगी। 50 अगर आप डालोगे तो और जल्दी लाइन ड्रॉ होकर आएगी, ये वो है। तो x इक्वल्स टू x प्लस इंक्रीमेंट, y इक्वल्स टू y प्लस इंक्रीमेंट, और ये हमारा आउट टेक्स्ट DDA जो हम लिखा हुआ आएगा हमारे पास। ये हमने इसको दे दिया, क्लोज कर दिया। और राउंड ऑफ के लिए हमने इंट b में a प्लस 0.5, ये जो a और b की वैल्यू थी ये हमने राउंड कर लेंगे x और y की। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम है, और ये इसकी आउटपुट है कि अगर हमने x1 100 डाला, y1 200 डाला, x2 300 डाला और y2 हमने 350 डाला, तो ये हमारा इस तरह से x1 y1 जो हमने प्रिंट आउट करवाया था ये हमने और x2 और y2 ये दोनों के बीच की लाइन हमारी ड्रॉ होके आ गई। और जो हमने आउट टेक्स्ट से आउटपुट डलवाया था DDA कोऑर्डिनेट देकर, वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होके आ गया। That was all about the lecture of DDA line drawing algorithm. Thanks and have a nice day.